Okay. Okay, so good evening, all of you. It's been 4, so yeah, it's a good evening to all of you. And last time का revision किया है कि नहीं? Am I audible to all of you? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes. Am I clearly audible? Yes. Yes. Yes, ma'am. Fine. So have you all revised the last part? Like first lecture था वो अपना, तो उसमें हमने basically सब introduction part ही देखा था. And I think I have started. Did I start with the chapter? I think the first page, right? Table. Table, yeah. So the table is the first introduction part, okay? And बस उतना ही देखा था. कुछ terms मैंने देखे थे. And आज मैं कुछ terms तुम लोगों को पूछना चाहती हूँ. Before starting with the whole soul chapter, I just want few of the questions to be answered by you people. So even new people, जो भी है, newcomers can also add up to that. And if I'm asking a question, I need answer from those also. So Naneshwari, can I start from you? Yes, miss. Okay, so can you tell me who are the prokaryotes? Old primitive nucleus. Okay, old primitive nucleus nahi. Their nucleus is not defined. Yeah, so you have to give me a whole definition. The organisms having old or primitive or not defined nucleus are called as the prokaryotes. Okay. Next, okay, Elvin, can you answer? Yes, ma'am. Yeah, so can you answer me about what are eukaryotes? So eukaryotes whose nucleus are defined. Okay, so whose proper definition? Eukaryotes are the organisms Yes. whose nucleus are Are specifically defined. या फिर defined. Specifically, Okay. yes. True बोल सकते हो nucleus या फिर advanced nucleus बोल सकते हो. Yes, Pragati, unicellular organisms. Yes, ma'am. Unicellular organisms का definition. Which has multiple cells. No. Unicellular organisms are the one who are having uni का मतलब होता है single. So one cell are called as the unicellular organisms, whereas this thing multicellular organisms many cells. Simple. तो यहाँ से शुरुआत होता है तुम्हारे बेसिक्स के बारे में, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था. दैट यू आर सपोज टू रिवाइज योर 8th and 9th का few टॉपिक्स मैंने बोला था. इफ यू आर रियली थरो विद दोस देन दिस पार्ट बिकम्स वेरी इजी. ठीक है, तो अभी मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर रही हूँ बेसिक्स के ऊपर? बिकॉज द मोमेंट यू नो द बेसिक्स, इसके आगे अभी हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं फाइलम्स के, द मोमेंट आई स्टार्ट विद द फाइलम्स यू विल बी गेटिंग टर्म्स लाइक दीज. These organisms are terrestrial. Okay, so what do you mean by terrestrial? Yes, Anagha, can you answer? Teacher, the animals which live on land are called terrestrials. Okay. Very good. The again, who are aquatic? The animals which live in water are aquatic. And who are amphibians? The animals which live on land and water. Yeah, very good. So अभी ये तुम्हारे definitions अगर fixed तुमको पता है, so when we are going to actually start with the phylum, तो जब हम characteristics पढ़ेंगे, so at that time it becomes very important for you and it becomes very easy कि तुम लोग बस एक characteristic पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा होगा these organisms are terrestrial. Okay. अब और एक मैं ऐड करना चाहूंगी, that is about fresh water and marine water. तो फ्रेश वाटर कौन सा होता है? जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको फ्रेश वाटर बोलेंगे, whereas मरीन वाटर मतलब सी वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेंट होगा उसको मरीन वाटर बोला जाएगा. ठीक है, सो वहां पे तुमको और एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा कि दीज आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स और दीज आर मरीन वाटर ड्वेलर्स. तो इमीडिएटली यू अंडरस्टैंड ड्वेलर्स कौन होते हैं? जो उस स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं उनको ड्वेलर्स कहा जाता है. ठीक है, तो ये हो गया क्यों. आई थिंक आई हैव कवर्ड मेनी ऑफ दीज. इसके अलावा और जो भी है, जैसे अभी आज हम जो पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर आज मैं स्टार्टिंग से एक बार मैं पूरा पीडीएफ शेयर करूंगी अभी,
एंड स्टार्टिंग से मैं तुम लोग को टेबल वो फील्ड रहेगा वो एक बार एक्सप्लेन करके किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है वो सारे आज बढ़े। एंड बिलीव मी, वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दोज जिसके बेसिस पे हम लोग वो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, एक बार वो आपको अच्छे से समझ गया या याद हो गया ना, उसका डेफिनेशन मैं आज तुम लोग को होमवर्क में देने वाली हूँ। Once you remember those, it becomes or it will be very easy for you to remember the characteristics of the phylums. देखो 10 phylums है, उसके ऊपर फिर तुम्हारे और क्या 10 chordates के हैं, फिर नॉन कॉर्डेट्स के हैं, राइट, फिर बाद में क्लास है, तो इतने सारों का कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना इजी नहीं। मतलब मैं तुम लोग को डरा नहीं रही हूँ, बट मैं तुम लोग को मतलब अलर्ट कर रही हूँ कि इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर याद रखने हैं तो उसके लिए तुमको कीवर्ड्स याद रखने हैं, और वो कीवर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे। जर्म लेयर्स रहेगा, बायलैटरल सिमेट्री, एसिमेट्री, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। तो जब तक मुझे ऐसे लगता है एक बार तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वर्ड्स याद रखने के लिए इजी हो जाएगा, पॉइंट्स याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। इज इट ओके? फाइन। सो मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ एंड वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज। ओके, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? Yes. Yes, miss. Ma'am. Okay, Yes, so miss. if you see, तो सबसे पहले मैंने सब कुछ वहाँ पे लिख के रखा है. So even if you want, you can see that the living organisms are specifically divided into prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, इसके बारे में हमने 8 में पढ़ा था. उसके बाद में हमने प्रोटिस्टा किंगडम, फिर बाद में एनिमेलिया, प्लांटे किंगडम, इसके बारे में भी हमने 9th में एक झलक देखा था. और अभी 10th में हम जो स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं वो है अपना एनिमेलिया किंगडम. ठीक है, अब वहां पे देखो क्या दिया है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल, एग्जांपल अमीबा. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तुमको पता है, ह्यूमंस, एनिमल्स. ओके, किंगडम प्रोटिस्टा. उसके बाद में क्या है कि मल्टी सेलुलर आर डिवाइडेड इनटू 2, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल. तो विद सेल वॉल वाले तुम्हारे रहने वाले हैं प्लांट्स, राइट, एंड देन विदाउट सेल वॉल आर दी किंगडम एनिमेलिया या फिर एनिमल्स. They perform photosynthesis, they do not perform photosynthesis. तो फंगाई के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हमने पढ़ा है they are saprotrophs, they are dependent on others for food. उनको हम लोग heterotrophs भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर बात हो रही है फंगाई की. बट हम स्पेसिफिकली फंगाई के बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली एनिमल्स के बारे में. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज, मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर देती हूँ. आई थिंक ये जो कैन यू रिकॉल के नीचे वाला पैराग्राफ है, मैं उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ तुम लोगों को कि वी हैव सीन मेनी ऑफ द एनिमल्स. अभी जैसे मैंने तुम लोग को टेरेस्ट्रियल का डेफिनेशन दिया, सो यू पीपल प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक देयर एज टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एम्फीबियंस. ओके, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियंस. देन राइट फ्रेश वाटर एंड राइट मरीन वाटर ऑल्सो. उसका डेफिनेशंस लिख देंगे आप लोग. टेरेस्ट्रियल जैसे मैंने बोला है, द वन हु live on land are called as the terrestrial organisms. The one who live in water are called as the aquatic organisms. The one who live on land and in water are called as the amphibians. ठीक है, ये हो गए 3 डेफिनेशन. इसके बाद में चौथा डेफिनेशन, फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड एज द फ्रेश वाटर, whereas मरीन वाटर उसमें सॉल्ट का कंटेंट होगा. सो यू कैन जस्ट से दैट दैट्स अ सॉल्टी वाटर या फिर मरीन वाटर. ठीक है, सलाइन वाटर भी बोल सकते हैं क्या? सलाइन वाटर भी बोल सकते हैं, या मरीन या सलाइन, एनीथिंग विल डू. बट मोस्टली टेक्स्ट बुक में मरीन दिया है, सो यू प्लीज प्रेफर राइटिंग मरीन. ओके, उसके बाद में दिया है यू हैव 7 मिलियंस ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है अर्थ पे. तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, तो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है, तो मैं इसका और एक रिपीट टेलीकास्ट नहीं दूंगी, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने देखा है कि कितने अलग अलग वैरायटीज है, वेरिएशंस है. उन सबको अगर पढ़ना है तो यू आर सपोज टू नो द क्लासिफिकेशन थिंग. सो आई थिंक इट्स टाइम टू मूव टू द हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन नाउ, जहाँ पे हम देखेंगे. सबसे पहले तो मैं तुमको बेनिफिट्स बता दूंगी, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है. सो यस बारिश, कैन यू रीड द बेनिफिट्स इन वन गो, ऑल 7? Yes. Study of animals becomes convenient. Study of few animals from a group helps to understand about that entire animal group. It gives idea about animal evolution. Animals can be easily identified with great accuracy.
It helps to understand the relationship of animals with other living organisms. It helps to understand the habitat of each animal and its exact role in the nature. It helps to understand various adaptations shown by animals. नाउ तो ये सारे जो भी बेनिफिट्स दिए हैं ये तुम लोग देख के ही पढ़ के ही तुमको इसमें समझ में आ जाता है कि क्यों क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, क्या उनका रिलेशनशिप है, उनका रोल क्या है, और अगर वो नहीं रहे या मिसप्लेस हो जाते हैं तो व्हाट कैन बी द एडवर्स इफेक्ट्स आल्सो। तो ये एडवर्स इफेक्ट्स तुम लोग पढ़ोगे तुम्हारे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वो चैप्टर, ठीक है। तो इट इज बिन लिंक्ड, हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होता है। तो ये सारे जो भी बेनिफिट्स है इसके बारे में तुम लोग रीड कर लो, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन, यू कैन नो इट आराम से, ठीक है, फाइन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द हिस्ट्री। Time to time, different scientists have tried to classify the animals. The Greek philosopher Aristotle was the first to perform the animal classification. So this can be asked as an MCQ to you people. So please underline that. Aristotle classified the animals according to the criteria like body size, habits, and habitats. Habits and habitats दोनों अलग words है। Habits मतलब जो तुम्हारे आदतें होती है उनको habits कहा जाता है, and habitat, where do you stay, where do you reside, live, that is called as the habitat. तो हर एक organism, हर एक animal का habitat अलग रहेगा according to its nature या फिर according to जैसे उसके habits है, जैसे उसका body size है, whatever, like according to the classification we can say. Further, as per the new developments in science, references were changed and thereby the criteria of animal classification too. Classification proposed by Aristotle is called as the artificial method. Besides Aristotle, artificial method of classification was followed by Theophrastus, Pliny, that P is silent, John Ray, and Linnaeus. Later on, the natural system of classification was followed. The natural system of classification was based on the various criteria like, so यहाँ से जो अभी चीजें हैं ये important है, that is they have given you about the chromosomes, types of cells कितने present होते हैं, जैसे मैंने कल नहीं लास्ट लेक्चर में तुमको एग्जांपल दिया था हार्ट चेम्बर्स के बारे में, या फिर मैं अभी बता रही हूँ अगर मैंने नहीं दिया होगा तो, कि human heart has 4 chambers. You have studied about the atrium and the ventricle. Do you remember about it? Yes. ऑन क्यों नहीं कर रहा है, मतलब याद ही नहीं है कि पूरी तरीके से सब कुछ भूल गए हो? हार्ट के बारे में पढ़ा है ना? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उसमें हमने हार्ट का स्ट्रक्चर फिर ब्लड वगैरह सब कुछ रीड किया है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब। तो वैसे हार्ट का चेम्बर्स 4 होता है ह्यूमंस में, वैसे ही कॉकरोच हैज 13 चेम्बर। सो ऐसे डिफरेंट चीजें हैं जिसपे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था अबाउट द चेम्बर्स। वैसे क्रोमोसोम नंबर भी डिफरेंट होते हैं, किसी में 56, किसी में कुछ अपन में 46 है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। नाउ द लास्ट थिंग व्हिच दे हैव गिवन यू, आई मीन द नेक्स्ट थिंग दे हैव गिवन यू इज अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है, दिस इज माय टेक्स्ट बुक विद ऑल द मेन इंपॉर्टेंट अंडरलाइनिंग्स एंड द मीनिंग्स आल्सो। सो इफ यू फील यू कैन जस्ट राइट many of them, जैसे मैंने वहां पे दिया है। इफ यू कैन सी नोटोकॉर्ड के बारे में मैंने दिया है, वर्टिब्रल कॉलम दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है वहां पे। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी क्लियर यू दिस थिंग कि आगे जो हम लोग सेक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। मैम कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले depending upon the presence or absence of the notochord. Ma'am, is notochord and vertebral column the same? No. The very first thing, notochord and the vertebral column both are not same. Vertebral column is the flexible column that extends from neck to tail. अभी इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है because ये already it is present in the human. So you can just touch your neck. You can see neck से लेके नीचे tail bone तक. Tail bone जहाँ पे तुम लोग बैठते हो, the way you sit, you can just feel that's your last point is your tail bone there. इसको coccyx बोला जाता है. So that whole part is your vertebral column. अब इस वर्टिब्रल कॉलम में सीरीज ऑफ बोन्स होते हैं, लंबार होता है, सर्वाइकल होता है, देन यू हैव कॉक्सिक्स एज वन पार्ट ऑफ द टेल बोन. सो इसके बारे में हम बात करेंगे जब फर्स्ट चैप्टर में आएंगे तभी, बट फिलहाल इतना याद रखो कि द फ्लेक्सिबल कॉलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक टू टेल इज कॉल्ड एज द वर्टिब्रल कॉलम. Whereas हम नोटोकॉर्ड की बात करेंगे तो ये है कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड. ओके मैम, डज इट रिजेंबल टू वर्टिब्रल कॉलम? समवॉट. It can resemble somewhat to vertebral column, but उसका
मतलब बोलते हैं ना कि अपीयरेंस विल बी डिफरेंट, दैट इज इसका कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड है। कार्टिलेजिनस मतलब सॉफ्ट बोन जिसको बोला जाता है, उसको कार्टिलेज बोला जाता है। अब आई डोंट थिंक तुम लोग को कार्टिलेज, बोन, टेंडन इसके बारे में भी मुझे सिखाना पड़ेगा, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है। डू यू रिमेम्बर 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर? कौन सा चैप्टर? 9th स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें टिश्यूज का याद है किसी को कि नहीं? Yes, yes. हाँ, जो भी यस बोल रहा है बताओ क्या पढ़ा था उसमें? टिश्यूज का डिफरेंसेस पढ़ा था ना हमने, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन ये अपना कौन सा है, कनेक्टिव मस्क्यूलर टिश्यू। याद है किसी को कि सब भूल गए अभी ये सब? Yes. याद है Yes, ना? yes, yes, वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट। तो उसमें हमने टेंडेंस, बोन्स, लिगामेंट, देन कार्टिलेज ये सब पढ़ा था। बस वही तो, इसीलिए मैं बार बार याद दिला रही हूँ कि ये ऑलरेडी पहले हो गया है, वही बस यहाँ पे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, फाइन। सो यू कैन से दैट सबसे पहले एनिमल क्लासिफिकेशन में नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो इफ यू सी देयर कि नॉन कॉर्डेट्स का उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है और कॉर्डेट्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। So I think we should start with the non-chordates. First one, the characters of non-chordate animals are as follows. First one, body is not supported by rod-like notochord. Yes, उसमें notochord absent है और इसीलिए उसको non-chordate बोला गया है. Very simple. Next one, pharyngeal gill slits are absent. Pharyngeal gill slits are absent. Now, What do you mean by pharyngeal gill slits? सबसे पहले गिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं? That's my first question. Fishes में, Fish aquatic में. plants, Right? So aquatic. fishes का, अगर this is the fish का एरिया, like ये उसका पूरा सरफेस एरिया है, ठीक है? तो फिशेस के यहाँ नीचे वाले पार्ट पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वो रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है? तो अपना जैसे ये पैरिंग्स होता है, वैसे पैरेंजियल साइड्स पे जो स्लिट्स होते हैं उनको पैरेंजियल गिल स्लिट्स ऐसा बोला जाता है। पैरिंग्स के यहाँ पे लोकेशन होने की वजह से उनका नाम है पैरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, तो क्या दिया है उन्होंने? पैरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दे हैव गिवन यू अबाउट इज डॉर्सल एंड वेंट्रल, राइट? वही वर्ड्स वहां पे यूज हो गए हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। फर्स्ट वन, nerve cord if present is on the ventral side and it is solid and paired. Heart if it is present, it is present on the dorsal side. अभी वहां पे मैंने डेफिनेशन तुमको लिख के दिया है, बट जस्ट इन केस टू एक्सप्लेन यू दैट थिंग मैं बताती हूँ, प्लीज पे अटेंशन टू मी। एक क्या दिया है उन्होंने? डॉर्सल एंड वेंट्रल। मैम इसको याद कैसा रखेंगे? So just imagine this is a lizard, ठीक है? अब ये lizard ऐसे crawling चल रहा है. The part of the lizard, the upper part or the upper surface of the lizard that is getting faced or that is facing the earth, that is facing the sun, that is the upper part. इसको बोला जाएगा dorsal. पीछे वाला हिस्सा, बैक पार्ट विल बी कॉल्ड एज डॉर्सल। अभी ये ऐसे चलते चलते उल्टे हो गए, गिर गई, कुछ भी हो गया। So have you ever observed a lizard? उसका outermost part is darker as compared to उसका अंदर वाला part lighter होता है। अब Yes. lizard देख पहली बात तो lizard देख के हम भाग जाते हैं, क्या देखेंगे उसको? Okay, but still if you would have really seen, तो ये जो अपर पार्ट रहेगा जो सन की तरफ फेस करेगा उसको डॉर्सल पार्ट बोला जाता है, whereas उसके अपोजिट उल्टा दिस पार्ट कैन बी कॉल्ड एज द वेंट्रल पार्ट। अभी मैं खुद का तुम्हारा एग्जांपल देती हूँ। अगर तुम लोग अच्छे इंसानों जैसा सो रहे हो तो तुम लोग सीधा सोते हो, राइट? नॉर्मली यू स्लीप स्ट्रेट, ऐसे सोते हो, तो योर दिस पार्ट गेट्स एक्सपोज टू द सीलिंग, तो ये वेंट्रल पार्ट हो गया, राइट? बट अगर तुम जानवरों जैसा सोते हो, उल्टा पिल्टा कैसे भी, ओके, द मोमेंट योर बैक कम्स अपर साइड, सो दिस बिकम्स योर डॉर्सल साइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डॉर्सल ऊपर वाला, वेंट्रल अंदर वाला या नीचे वाला पार्ट। वैसे ही और एक टर्म है उसमें, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर।
अगर ये अर्थवर्म है तो ये अर्थवर्म का हेड पार्ट है और ये अर्थवर्म का टेल पार्ट है। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट जो रहेगा उसको बोला जाएगा एंटीरियर पोजीशन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ अदर्स। इसको कहा जाएगा एंटीरियर पोजीशन, whereas the tail part, पीछे वाला पार्ट will be called as the posterior position. Am I clear till here? अब मैंने same, Tabarish, it will be same the way I'm sitting right now. So this part, the one which will be, देख वो मैंने एग्जाम्पल दिया ह्यूमंस का, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जो भी पार्ट तुम्हारा सन की तरफ फेस करता है उसको डॉर्सल पार्ट बोला जाता है, ठीक है। एंड देन जैसे तुम लोग मतलब अंदर वाला पार्ट दैट कैन बी कॉल्ड एज द वेंट्रल पार्ट। एक चीज याद रखिए, डॉर्सल इज द आउटसाइड वाला, वेंट्रल इज द इनसाइड। वैसे एंटीरियर इज द फ्रंट वाला पोजीशन, व्हेयरएज पोस्टीरियर इज द बैक वाला पोजीशन। सिंपल। एम आई क्लियर टिल हियर? चलो लेट्स मूव अहेड। फाइन, क्या दिया है तो वहां पे मैंने देखो लिखा है डेफिनेशन, इफ यू वांट, inside and facing towards the sun. Now let us see the next, that is the chordates के बारे में देखेंगे। The characters of chordates are as follows. Body is supported by a notochord, yes of course, इसीलिए उसको chordate कहा जाता है। Pharyngeal gill slits और lungs are present for respiration. Okay, ये भी हमको समझ गया। Nerve cord is present on the dorsal side of the body. It is hollow. सबसे पहले nerve cord present होगा, हर एक किसमें होगा नहीं। तो अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है, तो कहाँ पे होगा? डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे होगा, मतलब अपर वाले सरफेस पे यहाँ पे होगा, ठीक है। और वो कैसा होगा? हॉलो होगा। सो कैन यू सी द डायग्राम देयर? उसमें क्लियरली उन्होंने दिया है, सी दिस डायग्राम। क्या दिया है? नोटोकॉर्ड दिया है और उसके ऊपर का जो दिया है वो नर्व कॉर्ड है। कैन यू ऑल सी इट? Yes. Yes. Yes, miss. क्या इतना बोर हो रहा है तुम लोग को? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है यार, क्या मतलब, क्या हो गया? नींद आ रहा है सबको? व्हाट इज हैपनिंग टू यू पीपल? No. सी ये थ्योरी पार्ट है, इसको हमको ऐसे ही लेना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, जब तक तुम लोग आंसर में ये वेंट्रल, फिर डॉर्सल, पैरेंजियल गिल ये वर्ड्स नहीं आता है ना, उसमें अपर इनर सरफेस सब नहीं लिखने का है। उसमें अगर ये टर्म्स नहीं आता है तो यू वोंट बी स्कोरिंग मार्क्स। सो यू हैव टू नो द मीनिंग्स ऑफ ऑल दिस स्ट्रिक्टली। ओके, अभी नोटोकॉर्ड का वहां पे डेफिनेशन दिया है जो तुम लोगों को कम से कम 2 से 3 बार लिखना है। राइट इट 2 times or 3 times, दैट इज योर चॉइस एज होमवर्क। तो तुम लोगों को लिखना है नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन, दैट इज इट इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एनिमल बॉडी। इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी। इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड? अलग Alone. अलग से अलग से वो थोड़ा सा नर्व टिश्यू को क्या करेगा? बाकी के रिमेनिंग बॉडी से अलग रखेगा या फिर सेपरेट रखेगा, ठीक है। फाइन। अब नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 10 फाइला। अब ये फाइला का मतलब क्या है तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अगर सिंगुलर में किसी एक फाइलम का नाम लेती हूँ, जैसे एस्केलेमेंथिस है तो फाइलम, एनालिडा है तो फाइलम एनालिडा, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस, ओके, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। बट अगर मैं तीनों चारों नाम एक साथ लेती हूँ, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केलेमेंथस, एनालिडा, हेमिकॉर्डेटा आर दी फाइला। So singular is phylum, plural is phyla. Is it okay? Yes, miss. yes Can we miss. move ahead? Yes, miss. Yes. Okay, fine. So if you see there कि अभी next part जब भी हम अभी ये next part जब आए हैं, so if you can see वहाँ पे 6 point conventional system of animal classification, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट तुमको अपने डायग्राम बुक में ड्रॉ करना है। तो अभी तक कितना होमवर्क हो गया? सबसे पहले नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन तुमको लिखना है। 2 बार लिखेंगे तो भी चलेगा, 3 बार लिखा तो वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड उसके बाद में ये जो फ्लो चार्ट है ये डायग्राम बुक में एक ही बार लिखना है, लेकिन ये फ्लो चार्ट तुमको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमको सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉरीफेरा, पॉरीफेरा इज वन ऑफ द फाइलम्स, ओके, तो अगर बोला जाता है कि पॉरीफेरा के बारे में बताओ, सो व्हाट हैपेंस इज कि तुमको ये पता होना चाहिए कि वो नॉन कॉर्डेट है या कॉर्डेट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही आएगा कि अच्छा ये कॉर्डेट, अच्छा ये नॉन कॉर्डेट्स की हमको 10 फाइला पढ़ने हैं, ओके।
और फिर सब किंगडम आई मीन दिस थिंग कॉर्डेट्स के बारे में अगर पढ़ना है तो ओके फाइलम कॉर्डेटा, उसमें यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा, और फिर उसके क्लास दिए हुए हैं, वो है साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड ममेलिया। समझा? तो ये फ्लो चार्ट तुमको एक बार अपने डायग्राम बुक में पक्का ड्रॉ करना है और याद भी करना है। तो इसीलिए हमने स्टार्ट से लिया है कि किंगडम एनिमलिया इज बीन डिवाइडेड इनटू टू, तो उसके लिए तुमको नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। एक बार तुमको इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद हो जाएगा तो तुमको फाइलम्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। Am I clear till here, all of you? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोगों का रिस्पॉन्स देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मैम हम लोग को बस हो गया है बायोलॉजी, इधर ही हमको बस हो गया है, अभी तक तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर बायोलॉजी, लेट मी टेल यू। एम्पल एंड एम्पल ऑफ थियोरी होने वाला है, एम्पल एंड एम्पल ऑफ नेम्स होने वाले हैं, टर्म्स होने वाला है और डायग्राम्स होगा। फिर भी अभी तक हम बायोकेमिस्ट्री पार्ट में घुसे नहीं है। तुम्हारा सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस वाला, उसमें तो दुनिया भर का केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मिक्स होके आने वाला है। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। सोने का मन भी करता रहेगा तो पानी पी लो, तुम्हारे ब्रेन के सेल्स एक्टिव हो जाएंगे एंड योर ब्रेन सेल्स विल कंपेल यू पीपल टू लिसन टू बायोलॉजी। ठीक है, फाइन। सो आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हम इमीडिएटली नेक्स्ट पार्ट चालू कर देंगे। Fine. So next part is this. This system of animal classification was in practice till now. However, nowadays a new system of classification is being followed. We will study this new system of animal classification. Be taken. All multicellular animals are included in the kingdom Animalia, and this system of classification is based upon the criteria like first one, body organization, second, body symmetry, third, body cavity, fourth is germinal layers, and fifth is segmentation. तो ये 5 तुम्हारे क्राइटेरिया रहेंगे। ये 5 क्राइटेरिया हमको पहले पढ़ना है, इसी के बेस पे तुमको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएंगे। So I think we should start with the first one. Okay, grades of organization. I think any one person who can read. Yes. कौन पढ़ेगा? Anaga, start reading. Okay, teacher. Criteria for new system of classification. Grades of organization. Body of animal is made up of cells. In case of multicellular animals, many cells are performing different functions in their body. In case of multicellular animals, if tissues are not formed, their body organization is called as cellular grade organization. Example, phylum Porifera. In case of some animals, cells come together to form tissues with the help of which all the body functions are performed. Such animals show cell tissue grade organization. Example, animals from phylum Cnidaria. That C is silent, so you're supposed to pronounce it as Cnidaria. Cnidaria. Yeah, just Flat. wait. Okay, so what are they telling you? They are telling you that कि कुछ organisms ऐसे रहेंगे जिनका प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा। जैसे हम अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो हमने तो एक ही चीज पढ़ा है यार, मतलब 8th स्टैंडर्ड से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सब पूरा ह्यूमन बॉडी बोलो या कोई भी एनिमल स्ट्रक्चर का हम जब बात करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म का हम बात करते हैं, इवन प्लांट टिश्यूज का जब मैं बात करती हूँ, तो प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल्स, एंड वी आर मेड अप ऑफ, मतलब कंप्लीटली अपना सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, राइट। तो जब सेल्स एक साथ आएंगे तो वो टिश्यूज बनाएंगे। Tissues, when they come together, they form organs. When organs come together, what do they form? Body. Organ system बनाता है ना सबसे पहले। Organ system बना तो उसके बाद body है। उसके बाद में human body आएगा, because organ system मतलब अलग-अलग systems, that is your respiratory system, digestive system, right? तो जो organisms में ये सारे बनेंगे, like properly जैसे cell tissue grade होगा, उनका एग्जाम्पल देखो उन्होंने दिया है निडेरिया। तो निडेरिया इज द फाइलम। मैम अभी हमको नहीं समझेगा कि निडेरिया में क्या है, उसके लिए हमको एग्जैक्टली वो फाइलम पढ़ना पड़ेगा।
बट यहाँ पे हम लोग पहले ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहेंगे जैसे जिसमें टिश्यूज बनेंगे ही नहीं, तो मैम उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, उनका है सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यू कैन से फर्स्ट वन वहाँ पे दिया है द body organization of a unicellular animal is called as protoplasmic grade। सेकेंडली दिया है कि अगर उनके टिश्यूज फॉर्म नहीं होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर नहीं रहेंगे बट टिश्यूज फॉर्म नहीं होंगे, तो उनको कहा जाएगा सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जांपल पॉरीफेरा दिया है। और थर्ड वन उन्होंने दिया है कि जिसमें प्रॉपर सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, those animals come from the phylum Lideria। Flatworms show the tissue organ grade organization। In this type of organization, the tissues are organized to form some organs। However, the complete organ system are not formed। अरे कितना कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग, मतलब हमको ये बता रहे हैं कि ये वो तीन पहले का तो ठीक था, बट इसमें फ्लैटवर्म्स की अगर हम बात करते हैं, जिनको नेमाटोड्स भी बोला जाता है, तो अगर फ्लैटवर्म्स की हम बात करें या राउंड वर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इन वर्म्स के अंदर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड मतलब टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, अगर मैं बोलती हूँ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बनता है मतलब प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, यस, बट कंप्लीटली पूरी तरीके से सारे टिश्यूज फॉर्म नहीं हुए होंगे। सो ये हो गया उनका ऑर्गन होता है ना, मतलब ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लासिफिकेशन। अभी ये सिर्फ हमने देख लिया कि ओके कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा है, ठीक है। जैसे देखो नीचे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं बहुत सारे, यहाँ पे जो डायग्राम्स दिए हैं, तो फर्स्ट वन मेरे हिसाब से अमीबा, सेकंड पैरामीशियम दिया है विथ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या समझ में आता है कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन दिखाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स, ठीक है। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन दिखाएगा, तो यहाँ पे साइकॉन दिख रहा है हमको। मैम ये साइकॉन क्या है, तो साइकॉन है अपना पॉरीफेरा का एग्जाम्पल, स्पंज जो होता है नॉर्मल स्पंज, उसका एग्जाम्पल दिया है वहाँ पे। सो ये जो साइकॉन है, इफ यू सी द ऑर्गेनिज्म देयर, उसको आउटलेट के लिए ऑस्क्यूला दिया है। वो जो आउटलेट है वहीं से वो, दैट इज द ओनली वन एंड इट हैज फॉर इंजेस्टिंग एज वेल एज इजेशन। मैम व्हाट इज इंजेस्टिंग, व्हाट इज इजेशन, अंदर लेना बाहर की तरफ देना, दोनों एक ही एंड से होगा। और ये जो यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने अंडरलाइन करके लिखा है कि ये जो डायग्राम है उसका स्पेसिफिकली उन्होंने दिया है, स्पिक्यूल्स दिया है, बीच में अमीबियोसाइट दिया है, ऑस्टियम दिया है वो जो ओपनिंग है, एंड इट्स अ नॉन लिविंग पार्ट, तो येलो कलर का पार्ट दिया है। तो ये इन्होंने क्या किया मालूम है क्या, इसको वाटर वास्कुलर सिस्टम करके बोला जाता है पॉरीफेरा। मतलब जो भी स्पंजेस होते हैं या फिर जो भी साइकॉन होते हैं या फिर स्पॉन्जिला होता है, ये उनका एग्जाम्पल्स दिया है यहाँ पे। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये जो ऑस्कुला है इसमें से सिर्फ वाटर बाहर जाने के लिए यूज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कुछ कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग को? No. समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है मैं जितना बता रही हूँ, एटलीस्ट उतना तो समझो Yes. जितना बताया है, Yes, ठीक है। yes, Fine. miss. अभी यहाँ पे दिया है कि अमीबियोसाइट क्या है, स्पिक्यूल क्या है। सबसे पहले अ माइन्यूट शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर, उसको स्पिक्यूल बोल सकते हैं। और बाद में दिया है कि अमीबियोसाइट, अमीबियोसाइट क्या दिया है, सेल इन द बॉडी ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। तो मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिख के रखा है वो तुम अपने हिसाब से लिख के रखो। स्पिक्यूल क्या होगा, तो अ माइन्यूट शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन कब, जब हम आगे जाएंगे, दैट इज व्हेन वी विल मूव टू पॉरीफेरा, तो वो टाइम पे मैं तुमको और अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और ये जो बॉटल शेप जैसे दिख रहा है, इनको कॉलर सेल्स बोला जाता है। तो अगर तुमको इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम लोग को सबसे पहले बताना है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट वन टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 4 ये तुम लोग को ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आने चाहिए। एम आई क्लियर टिल हियर? Yes, Yes. ओके, Yes, miss. ये वाला एक बार डायग्राम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेलीफिश के बारे में दिया है। इसका डायग्राम तुमको कभी भी नहीं पूछेंगे, लेबलिंग कभी नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिया है। फिर साइड में उन्होंने दिया है एग्जाम्पल ऑफ प्लनेरिया। अब ये प्लनेरिया दिखता है ऐसे जैसे ब्लैक बॉक्स में दिया हुआ है, बट उसका अगर डाइसेक्शन करके आप देखोगे तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर जिसमें क्या क्या नेम किया है, नर्व कॉर्ड दिया है, अच्छा नर्व कॉर्ड है, फिर गैंग्लिया है जिसको ओवॉइड सेल्स बोला जाता है जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होगा, माउथ है, आई स्पॉट है,
फेरिंग्स है और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, दिस इज द कैविटी ऑफ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। मतलब गैस्ट्रोवास्कुलर बोला है तो वो डाइजेशन के लिए यूज होगा, whereas ganglia बोला है मतलब that is being those are the ovoid cells which are used for the process of reproduction. Am I clear till here? यहाँ पे हमने सिर्फ उनका एक बोलते हैं ना एक Yes. one sort of criteria हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। Okay? I think we should move ahead. Yes. Yes. Yeah. Besides the four of the body organizations mentioned above, remaining all animals show the organ system grade organization in which different organs are joined together to form an organ system that performs specific functions. Example, crab, frog and humans. Okay, तो crab का मैं तुम लोग को बता दूं कि वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आएंगे। अब उनको आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्यों कंसिडर किया गया है? बिकॉज आर्थ्रोपोडा का इटसेल्फ मतलब ये होता है joint appendages. Have you seen a crab? Crab का उसका वो appendages देखा है? Yes. No. No. Okay, fine. तो फिर मैं तुमको दिखा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। I'm going to show you all the examples जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए उसका अगर लेग जिससे वो क्रॉलिंग करता है, तो अगर तुमने देखा है तो वो जॉइंट रहते हैं, तो इसीलिए उसको जॉइंट अपेंडेजेस ऐसा बोला जाता है। एंड हेंस क्रैब इज कंसिडर्ड अंडर द आर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट एक हिंट तुमको देके छोड़ दिया है, इसके बारे में हम देखेंगे जब हम फाइलम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट वन, दैट इज ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम सेकंड के पास जा रहे हैं, दैट इज बॉडी सिमेट्री। हम बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे। तो क्या दिया है? यस अनगा, कैन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम इन इमेजिनरी सेंस? Okay, teacher. In imaginary sense, if body of any animal is cut through imaginary axis of body, it may or may not produce two equal halves. Depending upon this property, there are different types of animal bodies. A asymmetrical body. Okay, I'll tell you from this. तो क्या बोला है उन्होंने कि रैंडमली हम किसी भी एक ह्यूमन बॉडी को बीच में से अभी कट तो नहीं करेंगे, बट ऐसा एक इमेजिनरी एक्सेस जो तुम लोग ज्योग्राफी में बनाते हो ना, लैंड ये लॉन्जिट्यूड एंड वो सबके लिए, और के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन, वैसा जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि अगर एक बीच में से कट किया एग्जैक्टली ह्यूमन को, तो व्हाट यू कैन सी कि एक तो वो सेम या इक्वल हाफ्स बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है अपना सिमेट्री का। लाइक 3 टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री। फर्स्ट इज एसिमेट्रिकल, सेकंड इज रेडियल एंड थर्ड इज बायलैटरल सिमेट्री। नाम के हिसाब से जाते हैं एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द टर्म विच इज गिवन देयर, asymmetrical body. In case of such body, there is no any such imaginary axis of the body through which we can get two equal halves. Example, amoeba, paramecium. अमीबा को मैं कट करती हूँ, ये है अपना अमीबा यहाँ पे। अगर मैं ये अमीबा को कट करना चाहती हूँ, तो डू यू थिंक कि उसमें उसको बीच में से कट करने के बाद हमको इक्वल हाफ्स मिलेंगे? No. नो, एब्सोल्युटली नो। इवन पैरामेशियम में भी नो, बिकॉज पता नहीं कहाँ पे एक एकदम ब्रॉड पोर्शन है, कहाँ पे एकदम छोटा है, और पहली बात उनको स्पॉट करना तो बहुत डिफिकल्ट है, वो इतना भागते रहते हैं यहाँ से वहाँ। लाइक व्हेनेवर वी हैड आवर एक्सपेरिमेंट, तो पैरामेशियम को लोकेट करना इज अ वेरी बिग टास्क फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर उसको कट करने को आप जाते हो, सो यू कैन नेवर गेट एन एग्जैक्टली 2 हाफ्स। तो इसको कहा जाएगा असिमेट्रिकल बॉडी। असिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल भी सिमेट्री न होना। Second one, radial symmetry, according to the name. In this type of body, if imaginary cut passes through the central axis, but any plane of the body, it will always give you 2 equal halves. Okay, example, starfish. In case of this animal, there are 5 different planes passing through the central axis of body, through which we can get 2 equal halves. तो अभी imagine करेंगे, अभी अगर हम बात करेंगे, for example, this is starfish. ठीक है, ऐसी होती है ना स्टारफिश। जस्ट इमेजिन कि उसका ये बीच का जो लाइन है उसमें से मैंने उसको कट कर दिया, सो यू कैन गेट इक्वल टू हाफ्स। दिस इज योर रेडियल सिमेट्री। समझ में आया? अगर बॉडी को, अगर ह्यूमन बॉडी को तुम लोग बीच में से कट कर देते हो, तो एग्जैक्टली 2 हाफ्स में चला जाएगा, राइट? अच्छा, अभी ठीक है तबारिश? अभी आवाज ठीक है? Am I audible? Yes. हाँ, okay.
सो वैसे मैंने स्टारफिश का जो एग्जांपल दिया कि इफ यू कट इट फ्रॉम बिटवीन यू गेट अ रेडियल सिमेट्री, समझा? चलो लास्ट वन देखते हैं, जस्ट अ मिनट। लास्ट वन दिया है बायलैटरल सिमेट्री अकॉर्डिंग टू द नेम। अगेन बाय का मतलब होता है टू, ठीक है? In this type of body, there is only one such imaginary axis of body through which we can get exactly two halves. For example, insects, fishes. Fishes को बराबर ऊपर से दो पार्ट में कट करने का ट्राई करो, दोनों भी सेम साइज का मिलेगा। Frog, birds and humans also. इसलिए humans को भी bilateral symmetry में कंसिडर किया गया है। अगर तुम लोग डायग्राम्स देखोगे नीचे वहां पे दिया है एसिमेट्री का, देखो कैसा दिया है एसिमेट्री का, एक ज्यादा हो जाएगा एक कम हो जाएगा, ठीक है? रेडियल में देखो एग्जैक्टली जैसे 5 प्लेन में से वो कट होता है, अगर तुमने उसको एग्जैक्टली 5 में से कट कर दिया तो यू गेट एग्जैक्टली 2 हाफ्स। वेराज इसमें अगर देखेंगे बायलैटरल सिमेट्री में, अगर इस गोट को हम बीच में से कट कर देते हैं तो हमको एग्जैक्टली 1 आई हियर 1 आई देयर, और बराबर जितना है उतना इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएगा। Am I clear till here? Yes. Yes. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में हमने पढ़ा है बॉडी सिमेट्री। अब थर्ड वन हम देखने जा रहे हैं, वो है जर्म लेयर्स। ओके, लेट मी टेल यू, सबसे पहले जर्म लेयर सिर्फ 3 ही प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। अभी इन तीनों को याद कैसे रखेंगे? एक्टो, ECTO, एक्टो कौन सा होता है? जो बाहर की तरफ होगा उसको एक्टोडर्म बोला जाएगा। एंडो, एंडो मतलब जो अंदर की तरफ होता है उसको एंडोडर्म बोला जाएगा। डर्म मतलब जैसे पता है स्किन का लेयर होता है, उसको लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, वो स्किन का डॉक्टर है इसलिए उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसी तरीके से डर्म ये वर्ड हमेशा स्किन के लिए यूज होगा, रिमेंबर। तो यहाँ पे क्या दिया है? एंडोडर्म। एंडो मतलब अंदर, सबसे अंदर वाला लेयर रहेगा उसको एंडोडर्म बोलेंगे। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाला लेयर जो रहेगा उसको एक्टोडर्म बोलेंगे, और दोनों के बीच में जो लेयर रहेगा उसको हम मीजोडर्म ऐसा नाम देंगे। समझ में आ रहा है? तो जस्ट इमेजिन कि अपने पास एक राउंड स्ट्रक्चर है, ओके? ये राउंड स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा रहेगा? एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाला कौन सा रहेगा? एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में जो लेयर रहेगा उसको हम मीजोडर्म बोलेंगे। अभी और एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा चीज ये है, जिस ऑर्गेनिज्म में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों प्रेजेंट होंगे उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों लेयर्स प्रेजेंट। उनके भाषा में, बायोलॉजी के भाषा में ट्रिप्लोब्लास्टिक, अपने भाषा में 3 लेयर प्रेजेंट, just for the sake of understanding. Diploblastic, any two of the layers will be present. जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर मीजोडर्म प्रेजेंट है और एंडोडर्म प्रेजेंट है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। अगर एक्टोडर्म प्रेजेंट है, एंडोडर्म प्रेजेंट है तो भी उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। मतलब एक्टो, एंडो, मीजो, ये 3 में से कोई भी 2, ये 2, ये 2, ये 2, एनी 2। तो आउट ऑफ दीज 3 लेयर्स कोई भी 2 अगर लेयर्स बनते हैं या फिर उस ऑर्गेनिज्म में कोई भी 2 लेयर्स प्रेजेंट है तो उसको कहा जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। अगर पूरे के पूरे 3 लेयर्स प्रेजेंट है तो उसको कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये जो तीनों लेयर्स हैं इनको कहा जाता है जर्म लेयर्स। ठीक है? तो अगर कोई भी हम फॉर एग्जांपल कोई किसी भी हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें अगर लिख के आता है दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो व्हाट आर यू सपोज टू अंडरस्टैंड? ट्रिप्लोब्लास्टिक, अच्छा मतलब इसमें तीनों भी लेयर्स प्रेजेंट। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लोब्लास्टिक, अच्छा मतलब इसमें कोई भी 2 प्रेजेंट है, हमको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, क्या है, ये 12th स्टैंडर्ड के लिए है। मतलब 12th स्टैंडर्ड की जो है ना बच्चे, वो उन लोगों को डिटेल में दिया है कि ये ऑर्गेनिज्म में कौन से लेयर्स प्रेजेंट है।
अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये जानना डेफिनेशन। अच्छा, डिप्लोप्लास्टिक बोला है 2 रहेगा, डिप्लोप्लास्टिक बोला है 3 बोला है, Ne2 और इसमें 3। Am I clear till here? Yes, miss. Yes, miss. चलो, let us move ahead. Fine. अब आगे क्या दिया है, नेक्स्ट वन जो दिया है वो है बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी का मतलब होता है सीलम। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सीलम है मतलब बॉडी कैविटी है, सो दोनों का मीनिंग सेम। Cavity between the body and the internal organs is called as the body cavity या फिर सीलम बोला जाएगा उसको। मतलब बॉडी एग्जैक्टली जो ह्यूमन बॉडी होता है और उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लेकिन उन ऑर्गन्स और ह्यूमन बॉडी के बीच में जो स्पेस है उसको हम कैविटी बोल सकते हैं। सो प्लीज अंडरलाइन दिस द डेफिनेशन ऑफ सीलम कि कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड द इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज द बॉडी कैविटी. In case of multicellular animals, during the initial period of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm या फिर gut. Gut which is your stomach area या फिर digestive area जो होता है उसको gut कहा जाता है. Such type of body cavity is present in the animals of phylum Annelida and all phyla coming after Annelida. Such animals are called as यूसिलोमेट. सो प्लीज अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने किया है वैसे तो वहां पे ऑलरेडी अंडरलाइन यूसिलोमेट. तो नाम के हिसाब से यूसिलोमेट. यू का मतलब मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, True. ट्रू बोला था या फिर एडवांस बोला था, ठीक है. तो यूसिलोमेट का मतलब उनके अंदर एक्चुअली रियल में ट्रू कैविटी प्रेजेंट होगा, ठीक है. सेकंड क्या दिया है, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द फाइला पोरीफेरा, निडेरिया एंड प्लैटीहेलमिंथस एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज असिलोमेट. ओके, मतलब ये दो एक्सट्रीम्स हो गए. यूसिलोमेट मतलब जिसमें एक्चुअली कैविटी प्रेजेंट है और असिलोमेट मतलब जिसमें बिल्कुल भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है. एक याद रखेंगे, जब ये ए वर्ड लगाया जाता है किसी भी वर्ड के आगे, जब ये लेटर ए लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है विदाउट. जैसे हमने देखा एसिमेट्री. सिमेट्री मतलब टू इक्वल हाफ्स में होना, एसिमेट्री मतलब नो सिमेट्री, नहीं होना. एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है. लास्ट वन क्या दिया है, इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एस्टिलमेंथस दे हैव body cavity but it is not formed by the above mentioned two ways, hence those animals are called as pseudocoelomates. pseudopodia ये वर्ड हमने कहाँ पे यूज किया था या फिर तुमने कहाँ पे पढ़ा है, pseudocoelomate, sorry, pseudopodia कहाँ पे पढ़ा है, anybody who remembers your past standards? pseudopodia किसी को भी नहीं, how bad. Pseudopodia हमने पढ़ा है अमीबा में. अमीबा हैज pseudopodia, false feet. हम लोग का रिएक्शन देख के ना ऐसा मेरे को धक्का होना स्टार्ट हो जाता है. Pseudopodia कभी भी नहीं पढ़ा अमीबा के बारे में. अमीबा हैज pseudopodia मतलब उसको पैर होते हैं क्या, नहीं, लेग्स होते नहीं है, बट स्यूडोपोडिया होता है, मतलब लोकोमोशन के लिए वो शायद इसको यूज करता होगा. तो फॉल्स फीट प्रेजेंट होते हैं. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट. सो फॉल्स फीट आर प्रेजेंट इन दी अमीबा. वैसे यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है स्यूडो सीलम ना, सीलमेट. स्यूडोसीलमेट मतलब फॉल्स कैविटी, मतलब शायद वो ऑर्गेनिज्म के अंदर तुमको कैविटी दिखता होगा या फिर ऐसा वो दिखाता है कि है, बट एक्चुअली देयर इज नो कैविटी फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी. तो उसको हम लोग एक फेक या फिर एक फॉल्स ऐसा बोल सकते हैं. whereas असिलोमेट मतलब नो कैविटी, सिलोमेट मतलब एक्चुअली कैविटी होना, यूसिलोमेट मतलब ट्रूली कैविटी प्रेजेंट होना, एंड लास्ट में जो पढ़ा स्यूडो सिलोमेट, राइट, लाइक स्यूडो कैविटी जिसको बोल सकते हैं, that is false cavity. Am I clear till here? एक बार वो टेबल देख लेते हैं उसके से जो दिया है. अब ये टेबल यहाँ पे जो दिया है, ये फ्लो चार्ट जो दिया है यहाँ पे, एनिमल टाइप्स एज पर द कैविटी.
किंगडम, एनिमेलिया, मल्टीसेलुलर, ये सब पता है अभी हमको। अरे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हमने पढ़ लिया है, सेलुलर ग्रेड, टिश्यू, यस। फिर हमने बॉडी सिमेट्री भी पढ़ ली, जिसमें 3 टाइप्स की सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलैटरल, ये भी हमने डेफिनेशंस के साथ पढ़ लिया है। फिर बॉडी कैविटी अभी हमने देखा, एसिलोमेट, देन यू हैव स्यूडोसिलोमेट एंड देन यू हैव यूसिलोमेट। तो ये 3 तुमको कंपल्सरीली याद रखना है। और लास्ट का जो टेबल है यहाँ पे तुमको फाइलम्स के बारे में दिया है, तो उन्होंने एक शॉर्ट में जस्ट बता दिया कि पॉरीफेरा में ये सब कुछ होने वाला है, निडेरिया में रेडियल सिमेट्री, एसिलोमेट होने वाला है, और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होने वाला है, प्लैटीहेलमिन्थस में एसिलोमेट रहेगा। तो और लास्ट के यूसिलोमेट मतलब ट्रू कैविटी किस किस में प्रेजेंट है, कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। अगर तुम लोग ऊपर की तरफ आएंगे, मैं जूम कर रही हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने क्या दिया था यहाँ पे, such type of body cavity, मतलब यूसिलोमेट की मैं बात कर रही हूँ, so such type of body cavity will be present in the animals of phylum Annelida and all the phyla which are coming after Annelida। तो यहाँ पे देखेंगे, अरे यहाँ बराबर है, उन्होंने जो बोला वो सही है, Annelida में यूसिलोमेट प्रेजेंट है, एज वेल एज Annelida के बाद में जितने भी फाइलम दिए हैं वो सब में यूसिलोमेट प्रेजेंट है। समझ में आया यहाँ तक सबको? Yes. क्या? Yes. Okay, so I have really tried my best to give you all this। अभी एक काम करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क नोट डाउन करके लेंगे। पहले मैंने होमवर्क तुमको क्या बोला था, आई थिंक फ्लो चार्ट बोला है ड्रॉ करने के लिए, फिर नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन 3 बार लिखने के लिए बोला है, राइट? अब उसके बाद में तुम लोग लिखोगे एसिलोमेट, सिलोमेट, यूसिलोमेट, उनका डेफिनेशन, जो तुम लोग को वो पैराग्राफ में पूरा मिल जाएगा जो अभी हमने जस्ट पढ़ा। समझ रहा है क्या? आई रिपीट अगेन, स्टार्ट राइटिंग देयर एंड देयर इन योर टेक्स्ट बुक, इन योर नोटबुक, वेरेवर यू वांट। बाय सिमेट्री, सॉरी, ये सिमेट्री का 3 टाइप्स, एसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, तीनों का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, ये हो गया सिमेट्री के बाद, बॉडी सिमेट्री के बारे में। फिर लिखेंगे तुम लोग यूसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट, ये तीनों का भी डेफिनेशन। आई रिपीट, यूसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड लास्ट में असिलोमेट। ओके, सो ये हो गया 6 डेफिनेशन। 7th डेफिनेशन नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन लिखना है, राइट? उसके बाद फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो वो फ्लो चार्ट जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा फाइलम्स का पूरा, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा वाला, वो पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है? एज वेल एज, और एक एडिशन कर दो होमवर्क का, जो फर्स्ट पेज पे दिया है, आई वुड लाइक टू शो यू दैट पेज। अगर तुमको चाहिए तो उसमें का फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ नहीं समझा तो अभी पूछ सकते हो। और वो पूरा टेबल तुमको योर चॉइस डायग्राम बुक में निकालो, या तो फिर इसमें नॉर्मल जो तुम्हारा बुक रहेगा उसमें लिख सकते हो। So I'll just show you that page once again and then we can wind up with the lecture. Okay, so can you all see the first page? Yes. तो किसको अगर कुछ उसमें नहीं दिख रहा है, कुछ सही नहीं लिखा है मैंने, तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, या फिर जो भी है वो लिख के ले लो अपने इसमें। ये पूरा तुमको बनाना है, ड्रॉ करना है कंपल्सरी, कुछ नहीं है, हार्डली 2 to 3 मिनट्स है। Komal miss, yes, you are extending or no, just a minute. all right. तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम लोग को चाहिए तो।